Assalamu alaikum students. The topic which we are covering today is angle modulation. Okay, the CLOs which we are covering in this topic is CLO1 and CLO2. So it means we are basically covering both the CLOs, and this topic is present in chapter 5 of your textbook, and the section number is 5.1. So these are the contents which we will cover in this chapter. First we will discuss what is angle modulation. After this we will study what are the advantages and applications of angle modulation. Then we will move on to its types, which is phase modulation and frequency modulation, and in the end we will study Fourier spectra of angle modulated waves. So let's start with angle modulation. First of all, we will discuss its basic definition. In angle modulation, total angle of the carrier is varied in accordance with the modulating message signal amplitude variations. मतलब हमारे यहाँ पे जब एंगल मॉड्यूलेशन की बात की जाएगी तो हम कैरियर सिग्नल के एंगल को वेरी करेंगे, और हमें ये पता है कि कैरियर सिग्नल का जो एंगल है वो बेस कर रहा होता है फेज़ और फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बजाय एंगल मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी किया था इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। अब हम कैरियर के फेज़ को और या फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम इक्वेशन की बात करें, मतलब कैरियर सिग्नल को हम कैसे राइट कर सकते हैं, उसकी जेनेरिक फॉर्म है C(t)=AC, जो कि उसका एम्पलीट्यूड है। इसको वेरी करने से हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, जो कि हमारे चैप्टर 4 का टॉपिक था। एंड नाउ वी आर स्टडिंग एंगल मॉड्यूलेशन हेयर। दिस इज कॉज विच इज साइनोसाइडल कैरियर, एंड इट्स एंगल इज बेस्ड ऑन FC एंड phi. Phi is representing the phase of the carrier and FC is representing the frequency of the carrier. So if we are changing FC or phase, then it means we are discussing or we are doing the angle modulation. अब इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब FC और phi को मतलब आप शॉर्ट फॉर्म करने कंबाइंड फॉर्म, जो कि θ(t) है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा टोटल एंगल है। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल मॉड्यूलेशन आपकी एंगल मॉड्यूलेशन डिपेंड कर रही होगी कि FC जो है वो वेरी कर रहा है m(t) के साथ, तो हम इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब FC में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रिस्पेक्ट से, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगी। और अगर आपके एंगल में मतलब फेज़ में चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, तो फिर ऐसे एंगल मॉड्यूलेशन को आप फेज़ मॉड्यूलेशन कहेंगे। So it means we can say that angle modulation is basically divided into frequency modulation and phase modulation. If frequency of the carrier signal changes with respect to modulating signal, मतलब frequency change होगी तो हम ये कहेंगे कि this is frequency modulation, and if phase of the carrier signal changes with respect to modulating signal, so that would be phase modulation. अब आउटपुट सिग्नल हमारा आएगा AC cos 2πfct प्लस phi। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और FC जो है वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इट मीन्स वी कैन से our frequency is basically function of m(t), and m(t) is our modulating or message signal. On the other hand, here we are changing the phase of the signal with respect to time. So we can say phase is basically function of modulating signal. So this is the representation of output signal if we are changing either frequency or phase of the carrier signal. Now move on to advantages. So what advantages we can get in terms of angle modulation? So the first advantage is noise reduction, because we know that in amplitude modulation we were changing the amplitude of the carrier, which is more vulnerable to noise. So it means and noise is and frequency modulation or phase modulation has more resistance or more better immunity against noise. So in angle modulation the noise reduction
is the main advantage. Then the second advantage is improved system fidelity, because even in multipath fading we are able to receive the signal in much better form. Then the third is efficient use of power, because we know that in AM we have to transmit the carrier, which is not the case here. We are not transmitting the carrier, so but in AM, in standard AM, we have to transmit the carrier, so it means we are wasting our power. So now if we talk about the applications of angle modulation, then it has various applications. The first one is radio broadcasting, like FM, the radio which we listen. And then the second application is TV sound transmission, and one of the main application is cellular radio. So these are the applications of angle modulation. So now let's discuss the basics of phase modulation and frequency modulation. If we talk about the carrier form or the carrier signal before modulation, means it is unmodulated carrier, so it can be written as C of t is equal to AC cos 2 pi fct. अब कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, मतलब इसको हम आफ्टर मॉड्यूलेशन की बात करें तो कैरियर को हम AC cos 2 pi fct प्लस फाई ऑफ टी लिख सकते हैं, एंड दिस फाई ऑफ टी इज डिपेंडिंग ऑन Kp इंटू एम ऑफ टी. सो इसका यूनिट रेडियंस है, और एम ऑफ टी का जो एम्पलीट्यूड है उसको आप वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब है कि Kp विच इज़ बेसिकली फेज सेंसिटिविटी ऑफ फेज मॉड्यूलेटर, इसका यूनिट रेडियन ओवर वोल्ट्स बन जाएगा. अब हमारा जो फेज़ है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस इन एम ऑफ टी. सो इट मीन्स जब यहाँ पे फेज़ चेंज होगा तो हमारे पास जो भी कैरियर सिग्नल है, जो आउटपुट सिग्नल आएगा, उसको हम फेज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह सकते हैं. अगर हमने इस फेज़ सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो Kp specifies the change in phase for 1 volt amplitude change in message signal. It means जब हमारे मैसेज सिग्नल में 1 वोल्ट का चेंज आएगा तो हमारा Kp, मतलब हमारा Kp स्पेसिफाई कर रहा होता है कि चेंज इन फेज फॉर एवरी 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड चेंज इन मैसेज सिग्नल. तो इसको हम फेज सेंसिटिविटी कहते हैं. अगर अब हमें पता है कि अगर एम ऑफ टी हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन 1 में ज़ीरो पुट करने से फाई ऑफ टी हमारा ज़ीरो आ जाएगा. तो हम ये कहेंगे कि इन दिस सिनेरियो हमारे पास कोई फेज़ मॉड्यूलेशन नहीं हुई. इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो डिफ़ाइन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. अगर हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी की बात करें जो कि मॉड्यूलेशन से पहले थी, तो वो FC के इक्वल कंसिडर होगी, और अगर हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन कहें तो उसको हम FI कह सकते हैं. अब इसके लिए आप देखेंगे हमारे सिंस दिस इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सो आवर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली चेंजिंग, एंड नाउ इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम FC to FC plus Kf into m of t. So here FC is the unit of FC is hertz. Similarly, the unit of Fi is hertz. So we know that the m of t is represented in volts. So the unit of Kf, which is frequency sensitivity of the frequency modulator, will be hertz over volt. So this is basically change in frequency. So means हमारे पास इनपुट पे FC थी और हमारे पास आउटपुट पे FI आ गई है, और ये FI क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन FC प्लस KF m of t. अब KF स्पेसिफाई कर रहा है अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ द कैरियर सिग्नल फॉर 1 वोल्ट चेंज इन द मैसेज सिग्नल. मतलब मैसेज सिग्नल में हर 1 वोल्ट के लिए जो भी चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में उसको KF के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, या उस सेंसिटिविटी को हम KF कहेंगे. तो इफ़ m of t is equal to 0, then it means Fi is equal to FC, because according to this equation m of t जब 0 हो जाएगा तो हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी FC के इक्वल हो जाएगी, एंड इट इज़ शोइंग दैट नो मॉड्यूलेशन अकर्ड. अच्छा, अभी छोटी सी एग्जांपल है.
जो कि बेसिकली हमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में बताएगी। अब सपोज ये हम FM मॉड्यूलेटर कंसिडर कर रहे हैं। At the input side we have M of t, which is our message signal, and this is C of t, which is the carrier signal, and this M of t is passing through frequency modulator, and at the output we have SM of t, which is basically the frequency modulated signal. अब हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की जो सेंसिटिविटी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट है। इसका मतलब है for every 1 volt change in message signal the frequency change is 20 kilohertz. मतलब हर वोल्ट के लिए 1 वोल्ट का चेंज जब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में आएगा तो फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ चेंज हो जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा M of t एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट है और मिनिमम एम्पलीट्यूड -5 वोल्ट है। अब ये रिलेशनशिप हमें पता है फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो अब हम M of t का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उससे हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी या मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। So let's start with M of t is equal to 0. So if my M of t, the amplitude of my message signal is 0, then according to this equation my Fi is equal to Fc because M of t is 0. Now suppose the amplitude of M of t reaches to its maximum value, which is equal to 5 volts. So according to the equation we can write or we can get Fi is equal to Fc plus 100. Here Kf is 20 and M of t is plus 5, so this is Fc plus 100. Now the again we can assume that M of t is -5 volts, so it is the minimum amplitude of the message signal. So here Fi is equal to Fc minus 100 because we are taking -5 equal to M of t. So at this stage we can say that when M of t is equal to 0, Fi is equal to Fc. मतलब आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। जब M of t पॉजिटिव होगा तो Fi इज़ ग्रेटर देन Fc, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि Fc को जब हमने Fi के मतलब राइट हैंड साइड को जब लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल पुट करना था तो Fc में हमने 100 जब ऐड अप किया है तो हमारा वो हमारी राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आई है। इसका मतलब है कि Fi जो था वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू Fc। सो एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल देन वी कैन ऑब्जर्व दैट Fi इज़ लेस देन Fc। सिमिलरली मतलब हमने जब Fc में से 100 माइनस किया है तो हम Fi के इक्वल हुए हैं, तो इसका मतलब है मतलब हमारे Fi जो है वो लेस देन है Fc के। ओके, सो अगर हम FM की वेव फॉर्म की बात करें कि इसकी वेव फॉर्म हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम M of t देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल साइनोसाइडल सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और C of t हमारा कैरियर सिग्नल है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे बेस कर रहा है। अब हमने SFM of t को ड्रॉ करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मतलब अगर आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे M of t का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। मतलब यहाँ पे 0 था, उससे हमने स्टार्ट किया, अब इसमें M of t जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और इस पॉइंट पे जाके M of t अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अचीव कर लेता है। तो ये हमारा F max का पॉइंट होगा जब हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव की है। इसके बाद इस पॉइंट के बाद फ्रीक्वेंसी हमारा जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पे M of t 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 क्रॉसिंग पे हमारे पास M of t का एम्पलीट्यूड 0 है। तो हमें ये पिछली स्लाइड से ये पता है कि जब M of t 0 होता है तो Fi आपकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो Fc के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी Fc के इक्वल हो जाएगी। और अब अगेन जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो हमारा एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जब M of t का एम्पलीट्यूड
पॉजिटिव था तो हमने एफ मैक्स मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव की, क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और जब एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया तो हमने एफ में मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लिया, और उसके बाद जब ज़ीरो क्रॉसिंग थी, एम ऑफ टी ज़ीरो था, तो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ सी के इक्वल थी। So in this way we can draw the output waveform of FM signal. In FM मैसेज सिग्नल वोल्टेज वेरिएशंस, मैसेज सिग्नल में के वोल्टेज में जो भी वेरिएशंस आ रही हैं आर कन्वर्टेड एज कॉरेस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। इस मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली कैरियर में की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जिसकी वजह से एफएम को वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन या वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कहा जाता है। मतलब चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ एम ऑफ टी रिजल्ट्स इन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। अच्छा, अब हम कुछ फार्मूलाज या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल्स को, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा एम ऑफ टी जो है वो बेस कर रहा है, या एम ऑफ टी साइनोसाइडल सिग्नल, एंड नाउ द साइनोसाइडल सिग्नल कैन बी ईदर ए एम कॉस 2 पाई एफ एम ऑफ टी और ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी। सो दिस इज़ मैसेज सिग्नल और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए एम और मिनिमम एम्पलीट्यूड माइनस ए एम है। अब ये फार्मूला हमारे पास शो कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब हमारा जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी में आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये फार्मूला उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम सिग्नल फाइंड करनी हो, मतलब एफ मैक्स फाइंड करना, एफ सी विल रिमेन सेम एंड के एफ इंटू एम ऑफ टी, सो के एफ विल ऑल्सो रिमेन सेम, और एम ऑफ टी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच इज़ ए एम उसको हम लिख देंगे। इफ़ वी टॉक about minimum frequency of the FM signal, then F min is equal to FC plus KF into minus AM. So this is the minimum amplitude of the message signal. So our equation will be F min is equal to FC minus KF into AM. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट कर सकती है, तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम ऑफ के एफ इंटू एम ऑफ टी। मतलब इस फैक्टर पे हमारी फ्रीक्वेंसी की डेविएशन डिपेंड करेंगी कि जितना एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड जो है वेरी करेगा, और उसके लिहाज से हमारी सेंसिटिविटी जो है वेरी करेगी, उसकी मैक्सिमम रेंज से हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। तो के एफ इंटू एम ऑफ टी हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दिस, एंड एम ऑफ टी का मैक्सिमम जो है ए एम है। देयरफॉर वी कैन से एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ। मतलब हमने यहाँ पे ए एम इंटू के एफ की जगह पे डेल एफ पुट कर दिया, और एफ मीन इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल एफ। अब ये एक डिफरेंट फार्मूला है विच इज़ फॉर टू फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी स्विंग ऑफ एफएम सिग्नल। सो मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्विंग कितना है, उसके लिए हमें एफ मैक्स को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास 2 डेल एफ आ जाएगा जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्विंग शो कर रहा है। अभी तक हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे थे एफएम एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल से रिलेटेड, जो कि हमारी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पे आ जाते हैं विच इज़ फोरियर स्पेक्ट्रा ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स। Means if we have to find the Fourier spectrum of angle modulated waves, then we know that it can be the carrier C of t. It can be written in the form, or in this exponential form, that is real part of AC e raised to power j omega ct plus phi of t. Why we are taking only real part? Because we are taking carrier signal based on cos. So इसको हम separate कर लेंगे, और now we can expand this factor into power series, and after performing power series expansion this will be the final signal. So अब यहाँ से अगर आप देखें तो we can deduce that angle modulated signal basically consists of an unmodulated carrier cos omega ct. This is unmodulated carrier, and plus various amplitude modulated terms. These are basically amplitude modulated terms. अब ये आप देखें यहाँ पे हर जगह पे एंगल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है। तो एक फैक्टर हमारे पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, उसके पास हमारे पास
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिफरेंट टर्म्स है. So from this it is clear that the frequency spectrum of an angle modulated signal is not related to the message signal. Means it is इसका मतलब है कि अगर हम फोरियर स्पेक्ट्रा की बात करें तो एंगल मॉड्यूलेटेड का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है या उनका फोरियर स्पेक्ट्रा जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन फोरियर स्पेक्ट्रा की दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन message signal. So this is all from this lecture. Thank you.